99. Two individuals, American individuals. One was James Vanderbilt and another was Elizabeth. And they wrote a book, compiled a book. What was the name of that book? About plant blindness. And the title of the book was Preventing Plant Blindness. There's a plant before you. This time I have brought a root sample, but sometimes it may be a tree with a leaf. It may be with some flower also. It may be seed. And if it is kept before us, we keep guessing what it could be. And this is such a reputed medicinal plant which our forefathers, without any study of botany, zoology or forestry, because at that time there were no schools, no colleges, no that kind of professions, still they nurtured and they brought from so many lakhs of plant species. They selected this as one of the reputed medicinal plant, as a wound healer. Before turmeric use, before haldi use, they had the early man, while he was living in forests and caves, he started using this if he gets some damage, wound healing. So this is best wound healing tree. So it has been named as turmeric tree. Turmeric is haldi, basar, we say in Dogri or Punjabi, and this grows in the wilderness. Scientific name is also important because that gives you universal touch. If I call it by some universal scientific botanical name, so that will be understood even by a Japanese, even by the European, even by Australian person. But if I call its Dogri name, then only the people where the Dogri is being spoken, only those people will be connected to this shop. So this in Dogri is Kambalu, Kambali, Pahadi, Rajori, Poonch area, Simbalu, Kashmir, Cow Dutch. Cow means Kawa, Dutch means grapes. If you see its fruits, they look like black grapes, small size, and you can eat those fruits. It is very common in those areas where there is a snowfall during winter time. It doesn't grow in Araspura or Mirasa, but it grows in Kud, it grows in Sudmahadev, or Dudu Basantgarh, Bhadrava, Kashmir. And this is such a reputed plant. If you are from botany side, you must have read about the rust disease of the wheat. Wheat is this area where you have paddy as well as wheat also. And there is a very old disease which has always baffled the crop scientists. How to protect wheat crop yield from the impact of this disease. What is that disease? Puccinia is a fungal disease. Puccinia gramineus tristis species, that a kind of फफूंद, कवक, फंगस जिसका नाम है पक्सीनिया. और उसका एक इंटरमीडिएट होस्ट, ये एक तो वीट है, लेकिन उसको लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इसका भी सहारा लेना पड़ता है. तो इसके पत्तों के ऊपर भी आप देखते हो इसके स्पोर्स निकलते हैं, अगर आप देखेंगे तो दैट वे. अगर साइंस बॉटनी पढ़ी आपने या पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुएट लेवल पे भी इस प्लांट से जुड़ना होगा. आयुर्वेद यूनानी के एंगल से इसको क्या कहा गया? आयुर्वेद में खास करके दारू हरिद्रा. हरिद्रा मीन्स, हरिद्रा से ही शब्द हल्दी बना. हरिद्रा का कलर है येलो. और दारू, दारू दो होते हैं. ऊ की मात्रा छोटी दी या बड़ी दी, इसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है. बड़ी मात्रा देने से दारू शराब होगी, लेकिन छोटी मात्रा देने से वुड होगी. जिस तरह स्टेशनरी, प्रिंसिपल क्या सिद्धांत है? प्रिंसिपल है. और मैडम प्रिंसिपल PLE है या PAL है? स्टेशनरी ERY है या ARY? सो छोटी सी ऐसे ही हमारे हिंदी में भी आपको मिलेगी. तो इसका नाम क्या क्या है? संस्कृत में है दारू हरिद्रा, कश्मीरी में है कौ दच, और अभी मुझे मलयालम और तेलुगु बताने की जरूरत नहीं है. We also have the local name. Even in French, we might have some other. German में इसका नाम होगा. And this particular shrub, this is a small tree or large shrub, it has been heavily exploited. और इसका जो medicinal use है, medicinal very important part है, that is the root. The root is uprooted.
And earlier in 70s, 80s, it has been ruthlessly exploited from our forest. उससे क्या हुआ? मिट्टी उखड़ी, मिट्टी रेंज हुई, बरसात में सारी मिट्टी बह गई। और ये मिट्टी जो है ना, इसके बिना लाइफ की कल्पना करना बड़ा मुश्किल। Without soil, you can't have trees, you can't have crops, you can't have water conservation. So then you will have only rock, and on rock grows nothing. And 1 centimeter soil formation, it takes thousands of years. So are we able to conserve and protect soil as our forefathers did? Urbanization, pollution, then climate change, deforestation, we are cutting forests because we need wood also, we need to expand our roads, building and many other things. So definitely there is a stress on the soil, and moreover the soil got contaminated because of fungicides, insecticides, herbicides, इतने कीटनाशक या ये फफूंदनाशक, कवकनाशक चीजें। तो एक इंटरनेट मेरे मोबाइल में है, आपके मोबाइल में है। एक इंटरनेट जो खुदा ने, भगवान ने करोड़ों साल पहले ही इजाद कर दिया, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज वुड वाइड वेब। ये वाला जो है हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। और ये वाला क्या है? वुड, ये वुड है, चाहे रूट की है, वुड है। तो एक जड़ दूसरी जड़ से, दूसरे पेड़ की जड़ या दूसरी झाड़ी की जड़ को आपस में जोड़ने का तंत्र हमारे पास हो सकता है। वायरलेस हो, टेलीग्राफ हो, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स टू कम्युनिकेट। लेकिन नेचर में क्या था? नेचर में फंजाई होती है, मशरूम्स के, एक मशरूम को हम खाते हैं, बट देयर आर मेनी अदर व्हिच आर वाइल्ड एंड दे हैव द माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स, उनके धागे होते हैं, वो सॉइल में ही पनपते हैं। सॉइल में अगर मॉइस्चर होगा तो पनपेंगे, किस किस्म का मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तब भी वो मर जाएंगे, और सूखा पड़ गया तब भी मर जाएंगे। तो उनके लिए मॉइस्चर की ग्रेडियंट चाहिए, लेवल चाहिए। एंड देन दे कम्युनिकेट फ्रॉम ट्री टू ट्री, shrub to shrub, and this internet, which is called a fungal internet, it is only because of this soil. Another biochemist, Muhammad Hijri from Canada, North America, he is living in Montreal, he is an agronomist, scientist. उसने 2013 में एक बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, फास्फोरस क्राइसिस। हम बात करते हैं पेट्रोल का क्राइसिस, पेट्रोल शायद ना मिले तो हमको सोलर एनर्जी करनी पड़ेगी, विंड एनर्जी करनी पड़ेगी। लेकिन ही टॉक्ड ऑफ दैट ह्यूमैनिटी इन 2050। वो कह रहा है कि फास्फोरस का यूज जो है, फास्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। हर एक की जो हमारी जेनेटिक कोड है, वो डीएनए जो है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, उसमें आपके पास जरूरी है फास्फोरस का होना। और फास्फोरस इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑल सेल मेम्ब्रेन्स। फास्फोलिपिड्स बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरिया का इतने करोड़ों साल पहले बना बैक्टीरिया, और फिर आए ये एंजियोस्पर्म्स और हमारे एनिमल। लेकिन अब भी वही बेसिक जो एलिमेंट है फास्फोरस इज इंडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ। और इतने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं हम, और फर्टिलाइजर बनाने के लिए वी आर एक्सट्रैक्टिंग फास्फोरस फ्रॉम द माइंस, फ्रॉम द लैंड। और वो कह रहा है कि ये सारे का सारा फास्फोरस बारिशों से जब उखाड़ देते हैं जमीन को, वो सॉइल के साथ बह जाता है फास्फोरस, उसको हम ले आते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। और जब हम क्रॉप्स को देते हैं तो ही ब्रॉट दिस स्टडी कि 85% गोज वेस्ट। वो क्रॉप को नहीं मिलता, बेशक हमने गन्ने के खेतों में डाल दिया, गेहूं के खेतों में डाल दिया, धान में डाल दिया। वो कह रहा है, ही प्रूव्ड विद एक्सपेरिमेंट्स, 85% गोज अवे, cannot be absorbed by that crop, और सिर्फ 15% मिलता है। And we have excavated the mountains, degraded the mountains, ecology, इतना soil erosion हो गया, और that extra phosphorus got accumulated in wetlands, और wetlands में accumulate हो गया, there are algal blooms, water quality got deteriorated, we cannot fit for drinking, we need to purify it. So वो क्या कह रहा है, अगर ये फंगल जो है इसका रिश्ता, क्योंकि आजकल हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, वी नो हाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई, उसको हम इनोकुलेट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं पौधों को, उसका एक तरीका है, जैसे फर्टिलाइजर देते हैं ऐसे ही हम माइक्रोराइजा का एक किसी का फंगल का वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह होता है, अवेलेबल है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास, मार्केट में भी है, वो दिया जाता है। 85% इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्रॉप्स। इफ दिस
function is done by the mushroom or fungus or mycorrhiza, and only 15% goes waste. और साथ ही साथ we need not to excavate from the earth. तो वहाँ पे प्रोटेक्शन भी हो गई सॉइल की, और दूसरा नुकसान भी नहीं हुआ, एल्गल ब्लूम्स भी नहीं हुई, क्वालिटी वेटलैंड की यूट्राफिकेशन हो जाती है चलते चलते, वो एक दिन तो लैंड बन जाएगी फिर, तो ऐसा नहीं हो। और वो उसका क्या सपना था 2013 का, कौन था ये साइंटिस्ट, मोहम्मद हिजरी, तो उसका क्या सपना था, जैसे हम देखते हैं मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कोई लेबल होता है, ये टाटा वालों का है, ये किसी गावर का है कोई आइटम, तो वो कहते हैं मेरा एक ड्रीम है कि मेरे बच्चे और बच्चों के आगे बच्चे, पोता पोती, दोता दोती, वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करें घरों में, उसमें लिखा हो माइकोराइजा मेड। माइकोराइजा, माइको मैंने फंजाई मशरूम को कहते हैं साइंटिफिकली, और राइजा मैंने रूट, जैसे ये राइजा है ना, राइजा रूट को कहा जाता है, और माइको मतलब मशरूम की ही बहन, उसी की किस्म। तो माइकोराइजा जो प्रोडक्ट्स, चाहे वो केला हो, चाहे नारियल हो, चाहे धान हो, चाहे आपकी कोई सब्जी हो, वो कैसे बनी, क्या आपने फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के मार्केट में लाए, या आपने फंजाई की मदद से उसको तैयार किया। तो ही इज ड्रीमिंग कि वी शुड हैव द प्रोडक्ट्स विच आर लेबल्ड एज माइकोराइजा मेड प्रोडक्ट्स इन मार्केट। तो आप बच्चों के लिए वर्ल्ड सॉइल डे started its celebration from the year 2014। क्यों? कि उससे पहले राजा थाईलैंड के, उनका नाम है कुछ, उनका बर्थडे पड़ता है 5 दिसंबर को, जिन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि हमें इस मिट्टी का भी दिन मनाना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, वर्ल्ड लायन डे है, वर्ल्ड टाइगर डे है, वर्ल्ड फ्रॉग डे है, दुनिया भर के सारे हमने 365 में से कम 100 डेज तो हम मनाते ही मनाते हैं। तो उसने कहा ये भी मनाना है, तो 2014 से रेगुलरली वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, फोकसिंग ऑन अवर हेल्दी लैंड यूज प्रैक्टिसेस। क्या घड़े का पानी हमने छोड़ ही देंगे, क्या ये अच्छा है, वो हमें ही पता चलेगा। घड़े का पानी डेफिनेटली, और प्लास्टिक की बोतल में या बाल्टी में रखा हुआ पानी सेहत के लिए हानिकारक है। इवन प्लास्टिक की बॉटल में आ रहा है, हमें लग रहा है वहां पे माइक्रो प्लास्टिक उसमें ऐड हो गया, इट हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन ब्लड स्ट्रीम। So if you are really interested for your quality of life, then you have to maintain the quality of environment, and quality of environment is quality of soil is fundamental. Without this, we can't think of food security, we can't think of human security, we can't think of water conservation. So each and everything is to which we are not paying our attention. Sometimes we are throwing plastics, we are burning plastics, we are adding agrochemicals. Whatever little you can do at home, become eco-friendly, and that is the crux of today's talk. But I just gave you a thought, and then we will have a roam around and see what plants are there to connect with those trees also. So this, I think now you will identify. You can make it a powder. It can be added to your kitchen cuisines also. किसी भी साग सब्जी में जैसे आप हल्दी डालते हो, ये डाला जा सकता है। यहाँ कहीं चोट आ गई तो हम हल्दी डालते हैं, लेकिन पुराने आदमी के पास हल्दी नहीं होती थी, हल्दी बाद में हमने कल्टीवेशन शुरू की, तो इससे पहले ये भी यूज है। और रसावत एक होता है प्रोडक्ट, इसको बॉयल किया जाता है काफी जड़ों को, और बॉयल करके काले रंग का एक प्रोडक्ट बनता है, इसको होता है रसावत। तो एंटी मलेरियल है, पाइल्स में यूजफुल है, स्किन की जितनी भी ट्रबल्स होती है, पूरा आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। सो सच ए रिप्यूटेड मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम जो है हमें नहीं आया, तो दिस इज ए काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस। लेकिन आई विल लेट यू नो कि इवन आई हैड द कलर ब्लाइंड, वन प्लांट विच आई ब्रॉट इन 1988 फ्रॉम देहरादून, एंड उसकी रियल आइडेंटिटी कल शाम को हुई। 36 ईयर्स मैंने भी उसको गलत मान लिया, हालांकि मेरी थोड़ा सा फर्क है। उसको मैंने महुआ बोला, फूल मैंने देखे नहीं उसके, क्योंकि उसको बोटानिकल गार्डन में लगाया था, और बोटानिकल गार्डन में जब भी जाओ तो उसको पता नहीं देश है कि बड़ा वीली हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, पता नहीं देर उसको काट देते थे। और काटने से क्या होता है, उसके पत्ते तो होते हैं, फूल आने के लिए बिजाई छोड़ी नहीं आपने, और कह भी नहीं सकते क्योंकि जो कुर्सी पे होता है उसकी ही चलती है। कल बाई दी वे परसों में गया बोटानिकल गार्डन, आई सा द फ्लावर्स, तो महुआ के फूल वो लगे नहीं, बट आई वॉज इन डाउट, तो फिर मैंने फोटो को चढ़ा दिया महुआ के नाम से, लेकिन वो फिर एक टैक्सोनॉमिस्ट ने कहा ये महुआ का फूल तो नहीं लग रहा, तो वो क्या निकला, बटर ट्री, इंडियन बटर ट्री।
महुआ को भी बटर भी कहते हैं, उसको हनी ट्री कहते हैं बेसिकली। उसका फ्लावर एक ही रात में दिखता है पेड़ पे, वो एक रात का ही मेहमान होता फूल। फूल जैसे आज खिला तो एक रात रहेगा, दूसरे दिन वो गिर जाएगा, फिर आप जाओगे नीचे उसके फूल खिले हुए। और ये जो दूसरा है बिल्कुल महुआ, इसको भी पहले मधुका ही कहते हैं, अब नाम बदल दिया। उसके फूल वहीं लटके रहते, गिरते नहीं। और भी एक दो फर्क है दोनों में।